और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नेशनल हाईवे 2 पर स्थित अंडाल के धूपचुड़िया में सिद्धेश्वरी पेट्रोल पंप में बुधवार रात हुई लूटपाट ने खलबली मचा दी है। हथियार से लैस 6 अपराधी पेट्रोल पंप के अंदर घुस के और जमकर कर्मियों की पिटाई की। इसके बाद 1,07,000 नगद लूटकर फरार हो चले। फिलहाल अंडाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अंडाल थाना के धूपचुड़िया स्थित सिद्धेश्वरी पेट्रोल पंप में हुई लूटपाट की वारदात ने लोगों को हिला कर रख दिया है। बुधवार की देर रात बदमाश आग्नेयास्त्र दिखाकर लूटपाट मचाए और पंप कर्मियों की बेरहमी से पिटाई की। बदमाशों की पिटाई से एक पेट्रोल पंप कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि अन्य कर्मियों को भी चोटें आई है। ঠিক আছে আমি এই ভিডিওটা দেখি ঠিক আছে हाँ कोई मुख तो मुझे अच्छा है। लूटपाट के बाद सभी पंप कर्मियों को बदमाश शौचालय में बंद कर 1,07,000 नकदी लूटकर फरार हो गए। रात को ही घटना की जानकारी अंडाल पुलिस को दी गई। पुलिस पेट्रोल पंप पहुंचकर सभी कर्मियों को पहले शौचालय से बाहर निकालकर इलाज के लिए दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना के संबंध में सिद्धेश्वरी पेट्रोल पंप के मालिक सुकुमल पांडे ने बताया कि पंप राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित होने के कारण कमाई अच्छी होती थी। बुधवार शाम 4 बजे से लेकर रात 1:30 बजे तक जितनी भी कमाई हुई थी वो सभी पंप के अंदर ही थी। रात करीबन 1:10 के अंदर 6 लोग हथियार लेकर पंप के अंदर घुसे और लूटपाट करने लगे। ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। 6 लोग पंप के अंदर लूटपाट कर रहे थे, बाकी 3 लोग बाहर निगरानी कर रहे थे। इस लूटपाट की घटना के बाद अन्य पेट्रोल पंप कर्मियों में सनसनी फैल गई है। सभी अपने पेट्रोल पंप की सुरक्षा के लिए चिंतित है। पेट्रोल पंप ऑनर्स ने पंप की सुरक्षा की पुलिस प्रशासन से मांग की है। আপনাদের মোটামুটি একটা হিসাব হয়ে গেছে না? নয়তো বলবো 1.5 উপরে। আপনি বলুন তো স্যার আমাকে এসে বলতে আমি গাড়িটা লাগালাম এখানে যে বলতে কোন গাড়ি? বুলেরো ক্যাম্পার। আচ্ছা, যে বলতে আমি ওটা কার গাড়ি? এটা আমাদের মার্কসিস্টার এন্টারপ্রাইজ আচ্ছা, ঠিক। কোম্পানির। তো আমি যেতে যেতে আমাকে 2-3 জন এসে ধরে বোধে ফাইট চালাই দিল। ফাইট চালালে বোধে আমাকে রুমে ঢুকে মারধর করে আমাকে বাথরুমে মেরে ঢুকিয়ে দিল। ঢুকার পর আমাদেরকে লক করে দিল বাজার থেকে লক করে আমার 4 জন চুপচাপ বসে আছে। কী করবো আর কিছু করার নেই। 10-15 মিনিট পরে আমার খুলে দরজাটা ভেঙে বোধে আমার দেখতে আমার ওই পারে পেরিয়ে চলে গেছে। তারপরে আর কি হয়েছে তা আবার আমার আর দেখিনি। আপনার নাম কি? আমার নাম গোপী বাগ। এটা ঘটলো কি মনে হচ্ছে? এটা প্রি প্ল্যান একটা চুরি। আর কি বলবো, মানুষের মানে আমাদের ভয় বেড়ে গেল, আতঙ্ক বেড়ে গেল। কখনো দেখিনি, মানে আজ ধরুন 4 বছর হলো এই পাম্পটা, কখনো পর্যন্ত কোনো চুরি, কোনো ছোটোখাটো চুরি হয়নি। হঠাৎ রাতের বেলায় 6-7 জন এসে আর্মস নিয়ে এসে স্টাফ দিকে মেরে ধরে এইভাবে ডাকাতি করলো। চুরি তো নয়, এটা ডাকাতি বলতে পারেন। এতগুলো আর্মস নিয়ে এসে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি যা বলবেন। কতজন আপনার স্টাফ ইনজিওর্ড হয়েছে? আমার 2 জন ইনজয়েড, মানে স্টাফ ভালো ইনজয়েড হয়েছে। একজন মাথায় এখনো অ্যাডমিট আছে হসপিটালে, মাথা ফেটে গেছে। আর আরও 2-3 জনকে মেরেছে, মানে তারা মানে সেরকম হালকা ইনজয়েড, সেরকম কিছু নেই। মানে রাতে যতগুলো স্টাফ ছিল ততগুলো ইনজিওর্ড হয়েছে? হ্যাঁ, সবাইকে মেরেছে। যাতে 4 জন ছিল 4 জনকেই মেরেছে। ঢুকে সোজা ধরুন আর্মস নিয়ে ঢুকে গেছে, ঢুকেই অ্যাটাক। প্রথমে মারধর, পিস্তলের বাঁট নিয়ে ঠোকাঠুকি, মারামারি, মেরে মুখ ফাটিয়ে দিয়েছে। তারপরে ওই যা ছিল সব লুটপাট করে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। কি মনে হচ্ছে আপনার যে এটা আপনার সঙ্গে কোনো দুশ্মনী আছে? দুশ্মনী কি বলবো, দেখুন কি হতে সব কিছুই পারে। কোনো দুশ্মনরা উস্কানি দিচ্ছে সেটাও হতে পারে, বা মানুষের নিরাপত্তা বেড়ে যাচ্ছে সেগুলো নিয়েও কিছু হতে পারে। নিরাপত্তা কমে যাচ্ছে, বলতে পারছি না এটা কি হবে, আমার কোনো আইডিয়া হচ্ছে না। আনুমানিক কত টাকা চুরি হয়েছে? আনুমানিক প্রায় 1,05,000-7,000 টাকার মতন গেছে। আপনার নাম?
আমার নাম সুকমল পান্ডে, অন্ডাল গ্রাম, পাম্পের মালিক। তো এই যে কালকে ডাকাতি হয়েছে, কি মনে হচ্ছে? এটা মনে হচ্ছে এটা অনেক দিন আগের থেকে কেউ প্ল্যান করা হয়েছে। এসে পথে প্রথমে ক্যাশ ড্রয়ারকে অ্যাটাক, হট করে তো কেউ জানতে পারবে না যে ক্যাশ ড্রয়ার কোথায় আছে না আছে। প্রথমে এসে পথে ক্যাশ ড্রয়ার অ্যাটাক, তারপর আমাদের ছেলেকে এরকমভাবে মারধর। কী নিয়ে এসেছিল ওরা? সব আর্মস নিয়ে এসেছিলো, বন্দুক নিয়ে এসেছিলো, চাকু নিয়ে এসেছিলো। আর কিসে এসেছিল ওরা? ওরা এসেছিলো এখান থেকে, আপাতত আমাদের পাম্পের এন্ট্রি পয়েন্ট থেকে হেঁটে হেঁটে ঢুকছিল। তারপর মানে ওই পারে আর কি রোডে ওদের গাড়ি ছিল, হয়তো ওই পারে চলে গেছে। আপনারা তো রাত্রে কাজ করে নিরাপত্তা বোধ হচ্ছে। হ্যাঁ, এবার তো এই ঘটনাটা হওয়ার পর থেকে তো এবারে আমাদের একটুখানি ভয় ঢুকে গেল, এই যে আমাদের দুটো ছেলে ইনজার্ড হয়েছে। আপনার নাম? आकाश दिवर। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर नगर निगम के विभिन्न वार्डों में निगम की तरफ से वैक्सीन लगवाया जा रहा है। श्यामपुर स्वास्थ्य केंद्र में भी वैक्सीन लेने आए लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र के कर्मी अपने परिचितों को अंदर बुलाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं और हम लोग सिर्फ लाइन में लगे हुए हैं। दुर्गापुर शहर के 42 नंबर वार्ड अंतर्गत श्यामपुर स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार वैक्सीन के लिए लाइन में खड़े लोगों ने आयोजकों पर दुर्नीति का आरोप लगाते हुए हंगामा मचाया। लोगों द्वारा हंगामा मचाए जाने से वैक्सीन वितरण कार्य कुछ देर के लिए बाधित हो गया। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पहुंची और उत्तेजित लोगों को शांत कराकर दोबारा टीकाकरण का कार्य शुरू करवाया गया। बता दें कि दुर्गापुर नगर निगम के विभिन्न वार्डों में इन दिनों निगम द्वारा लोगों को प्रथम डोज का वैक्सीन दिया जा रहा है। आरोप है कि निगम के कई इलाकों में अभी तक अनेक लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पाया है। गुरुवार श्यामपुर स्वास्थ्य केंद्र में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वैक्सीन लेने के लिए लाइन में खड़े लोगों ने आयोजकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वैक्सीन लेने के लिए सैकड़ों लोग सुबह से लाइन में खड़े हैं। गर्मी के मारे लोगों का बुरा हाल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आयोजक वैक्सीन लेने के लिए परिचित लोगों को कार्यालय के अंदर बुलाकर वैक्सीन लगा रहे हैं। इससे लाइन में खड़े लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि विशेष राजनीतिक पार्टी के लोग सक्रिय होकर अपने समर्थकों को वैक्सीन उपलब्ध करवा रहे हैं और इसके एवज में रुपए भी ले रहे हैं। পেছন থেকে ঢোকাচ্ছিল। কি না ঢোকানো হচ্ছে, কি বলবেন? কোনো লোক ঢোকানো হয়নি, বাইরে থেকে লাইন, আমি প্রত্যেক নাম্বার ধরে ধরে নাম দেখেছি প্রত্যেকে ঢুকেছে, কিন্তু একটা ফ্যামিলির নাম লেখা আছে পুলো, উনি ঢুকবে বলছে না আমরা 8 জনই ঢুকবো, তখন থেকে ঝামেলাটা বাঁধলো। আপনাকে ভ্যাকসিন বন্ধ রেখেছেন? হ্যাঁ, কিছুক্ষণ 8 ঘন্টা ভ্যাকসিন বন্ধ রেখে দিয়েছেন? হ্যাঁ, 8 ঘন্টা। কি নাম আপনার? আমার নাম আলপনা। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अंडाल के काजोड़ा एरिया के जामबाद कोलेरी पीठ पर गुरुवार सीटू की सभा की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि सितंबर में होने वाली 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन को सफल बनाया जाए। सितंबर महीने में होने वाली 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन को सफल बनाने के लिए काजोड़ा एरिया के जामबाद कोलेरी पीठ पर सीटू की सभा की गई। इस अवसर पर ऑल इंडिया कोल फेडरेशन के ऑफिस बेयरर विनोद सिंह, सीटे सेंट्रल कमेटी के सदस्य इरफान खान, नीलकंठ मंडल, शंकर लाल बैरेट और जियाउल रहमान मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए विनोद सिंह ने कहा कि कोयला उद्योग की रक्षा कोई कर सकता है तो वो है सीटू यूनियन। बाकी अन्य यूनियन प्रबंधन की दलाली और आगे पीछे करने में ही अपना समय काट रहे हैं। लेकिन कोलेरी में क्या हो रहा है, कैसे कोयला उद्योग को बचाया जा सके, ये केवल सीटू ही कर सकता है, जो कोयला खदान के लिए आंदोलन करते आ रही है। इसलिए सीटू और CMSI को बचाने के लिए 3 सितंबर से 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन होने जा रहा है। इस राज्य सम्मेलन को सफल बनाना जरूरी है। आपके मोबाइल में डेली एक तो करके ड्रग्स बेचता है और लोग उसी को लेकर मताया हुआ है। 7 से आप पड़े हैं, 10 से आप कोसों दूर। जब कोई फासिस्ट सरकार चलती है देश में तो वो पूरे स्ट्रीम लाइन से ऊपर से लेके नीचे तक सारे लोगों को एक एक करके निकलता चला जाता है। मजदूर को निकलेगा अलग,
न युवक को निकले गणेश जी को दूध पिलाना शुरू कर दिया। बोला क्या? बोला गणेश जी दूध पी रहा है। पलट के जय श्री राम से इधर दुर्गा माँ की तरफ पलटी हो गया ये। और अभी देख रहे हैं न वही लोग बड़ा नेता हो गया। अरे गजब का हाल है भैया। तुम थे कहाँ कर क्या रहे थे? कोयला खदान को बचाने के लिए मूवमेंट में था का? हम आपको गिनाते हैं एक एक मूवमेंट। कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट, 5 दिन का हड़ताल हुआ कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट के लिए। 5 दिन में 3, 4, 5, 6, 7 2015 साल में 3 दिन हड़ताल किया, तीसरा दिन हड़ताल वापस किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि साथे बोला सरकार माइन मिनरल्स रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट, इसको हम लोग बदल देंगे। माइन मिनरल्स रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट को बदलेंगे। और अभी तक हम लोग समझ ही रहे थे, तब तक बोला कि कोयला खदान में विदेशी पूंजी निवेश 100% लगाओ। विदेशी पूंजी निवेश को 100% लगाओ। लगाने के लिए क्या किया? न सारा लोगों को पीछे में खड़ा कर दिया, बाहर से विदेशी पूंजी आना शुरू कर दिया, न कोयला खदान को विदेशी पूंजी खरीदेगा। हम लोग 2, 3, 4 को हड़ताल बुलाए। 3 दिन हड़ताल बुलाए। हड़ताल बुलाने के वजह से बहुत सारे लोग जुटने के बाद बोला गया, चारों यूनियन जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन भाग गया। हम लोग खड़ा हुए, हम लोग विरोध बनाएंगे। मोदी जी का पुतला दान किया इसी चाणक पे, वहां पे खड़ा होके कि आप कोयला सेक्टर में विदेशी पूंजी निवेश नहीं कर सकते हैं, ये सरकारी कल कारखाना को आप प्राइवेटाइज नहीं कर सकते हैं। तो कैसे हो रहा? ये कैसे हो रहा भाई? हम लोग मुंह पे यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, जगह जगह पे विरोध करते हैं। आप वोट के समय में वोट का बक्सा में कैसे वोट पलटी हो जाता है, ये समझना पड़ेगा मजदूर यूनियन को। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा घोषित की गई दुआरे सरकार योजना जगह जगह लगाई जा रही है। गुरुवार बांकुड़ा के 11 नंबर वार्ड स्थित शारदा मणि महिला महाविद्यालय में शिविर लगाया गया, जहां नगर निगम प्रशासक अलका सेन मजूमदार ने दौरा कर लक्ष्मी भंडार योजना के लिए महिलाओं में फॉर्म बांटी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा घोषित दुआरे सरकार योजना के लिए जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं। इन योजनाओं में लक्ष्मी भंडार योजना के लिए महिलाओं की भीड़ काफी देखी जा रही है। बांकुड़ा के 11 नंबर वार्ड के शारदा मणि महिला विद्यालय में दूसरी बार दुआरे सरकार शिविर लगाया गया। इस शिविर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा घोषित योजनाओं की सेवा प्रदान की जा रही है। बांकुड़ा नगर निगम की प्रशासक अलका सेन मजूमदार दुआरे सरकार शिविर का गुरुवार दौरा किया और महिलाओं के हाथ में लक्ष्मी भंडार के लिए फॉर्म दी। महिलाओं को फॉर्म मिलने पर उनमें काफी खुशी देखी गई। এই প্রকল্প নিয়ে কি বলবেন? মুখ্যমন্ত্রী এই যে লক্ষ্মী ভাণ্ডার প্রকল্প, আজকে লক্ষ্মী ভাণ্ডার তুলে দিলেন, লক্ষ্মী ভাণ্ডার তুলে দিয়ে কি বার্তা দিলেন তাদের? লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তুলে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে লক্ষ্মীদের পাশে আছে, আজকে শুধু লক্ষ্মী ভাণ্ডার নয়, আজকে স্বাস্থ্যসাথী বলুন, খাদ্যসাথী বলুন, আজকে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, প্রত্যেকটা মহিলাদের পাশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছে। আমরা মহিলাদের মুখ থেকে আপনারা শুনে নেবেন যে মহিলারা, যে লক্ষ্মীরা আজকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, যারা লক্ষ্মী ভাণ্ডারের ফর্ম তুলছেন, ফর্ম জমা দিচ্ছেন, তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে মহিলাদের পাশে আছেন, মহিলাদের সাথে আছেন এবং মহিলাদের কথা তিনি চিন্তা ভাবনা করেছেন। সেই জন্য মহিলারা আজকে আনন্দিত এবং গর্বিত। এই যে ভাণ্ডার, লক্ষ্মীর ভাঁড় তুলে দিলেন, তুলে দিয়ে কি বললেন তাদেরকে? তাদেরকে এটাই বললাম যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রত্যেক মাসে যে টাকাটা দেবে, সেটা যদি লক্ষ্মীরা, কারণ মহিলারা তো লক্ষ্মী, তো সেই টাকাটা সঞ্চিত করে, কূপের মধ্যে সঞ্চিত করে বছরের শেষে দেখা যাবে একটা মোটা টাকা। কারণ আজকে যে মহিলারা পরিবারটাকে চালায়, যে মহিলারা সংসার চালায়, সেই মহিলাদের কাছে ওই টাকাটা অনেক মূল্যবান। অসময় তারা ওই টাকাটা থেকে বের করে সংসারের যদি কোনো অসুবিধা হয়, সেই টাকাটা বের করে সংসার চালাতে তারা সাহায্য করবে। সেই কারণেই সেই ভাড়টা তুলে দেওয়া হবে।
बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल के गुरु नानक नगर स्थित गुरुद्वारा में पश्चिम बर्धमान के विभिन्न गुरुद्वारा प्रबंधकीय कमेटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बताया गया कि आगामी 6-7 नवंबर को सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। ये रुमाल काट लो से हाँ जगीर कौर से बात की, उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके आने वाली 6 और 7 नवंबर की जो तिथि है वो निश्चित की है पश्चिम बंगाल की स्टेट लेवल की आयोजन के लिए। तो हम लोग उनकी इस तारीख के साथ अपनी सहमति ज्ञापन किया है हमने, और लिखती रूप से हमने उनको अपील की थी और उन्होंने भी उस बात की प्रवानगी दी है। और इस बड़े पर्व में शताब्दी जो हम लोग समारोह मनाएंगे उसमें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर जी उपस्थित रहेंगी, और हमारे जो अकाल तख्त जो सिरमौर संस्था है हमारी धार्मिक संस्था, उसके मुखी यानी हरप्रीत सिंह जी वो खुद मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ हमने जब उनकी डेट कंफर्म हुई तो यहाँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी के पास भी इसके पहले भी चिट्ठी दी थी, और अभी जब हमारी डेट तय होगी तो इसकी इन्फॉर्मेशन की चिट्ठी भी हमने सीएम साहब को पहुँचाई। हमारे यहाँ के जो मंत्री जी हैं श्री मलाई घटक जी, उनके द्वारा उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि ये दोनों डेटों में जो भी डेट उनको सूट करेगी उसमें मुख्यमंत्री साहिबा उपस्थित रह करके हमारे साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगी। तो ये एक सूचना थी जरूरी, जो यहाँ की पश्चिम बर्धमान की सभी संगत को बतानी जरूरी थी, क्योंकि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना जो है बलिदान दिया था, और ये सरबत के भले की बात का स्लोगन भी उन्होंने दिया था। और हम लोगों ने प्रैक्टिकल रूप में हमारे सारे गुरुओं ने ये शिक्षा को अपने दुनियावी जीवन में धारण करके भी बताया है। इसीलिए आप सबको ये खुशी की खबर बतानी है, और इसमें 2 प्रबंधक कमेटियों का विशेष योगदान है। बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, बराकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, विशेष करके आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। जो 6 तारीख का समारोह होगा वो आसनसोल में होगा, और 7 तारीख का जो समारोह होगा वो चूँकि हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम पे यहाँ दुर्गापुर में एक CBSE का +2 एफिलिएटेड स्कूल है, तो वो स्कूल चूँकि गुरु साहब के नाम में है, इसीलिए हम लोग उस गुरु को समर्पित होकर के उस गुरु तेग बहादुर स्कूल के प्रांगण में, क्योंकि वहाँ पर जियोग्राफिकल लोकेशन अच्छा है और वहाँ पर पार्किंग और एक साथ बहुत सारे लोगों का एकत्रित करने में सुविधा होगी, और CM का आने में भी वहाँ पर आयोजन रखने में हम लोगों को जो लॉ पॉइंट है, सिक्योरिटी पॉइंट है, उसको भी एड्रेस करने में हमको सुविधा होगी। इसीलिए हम जो है कोशिश करेंगे कि CM साहिबा का प्रोग्राम जो है वो उनकी इच्छा के अनुसार दुर्गापुर में करवाया जाए। तो ये सारी सूचनाएं आपके साथ शेयर करनी थी। और एक छोटी सी इसमें एडिशन है कि अफ़गानिस्तान में जो पिछले कुछ उनकी इच्छा के अनुसार दुर्गापुर में करवाया जाए। तो ये सारी सूचनाएं आपके साथ शेयर करनी थी। और एक छोटी सी इसमें एडिशन है कि अफ़गानिस्तान में जो पिछले कुछ दिनों से जो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर के चिंता है पूरे विश्व को, वहाँ पर हम सिख धर्म के अनुयायी होने के नाते, जैसे कि अमेरिका ने भी अपना हाथ खींच लिया है और उसने डेडलाइन से पहले एक दिन एक सरेंडर मोड में आके वहाँ से अपने सारे पैरामिलिट्री फोर्स को, मिलिट्री फोर्स को विड्रॉ कर लिया है, और वहाँ पर तालिबान की तशद्दुद के ऊपर में वहाँ की जनता को छोड़ दिया है, जिसमें हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, और ये एक प्रशंसनीय कदम है हमारी भारत सरकार का कि उन्होंने कोशिश करके वहाँ से काफ़ी सारे लोगों को इवैक्यूएट किया है, जिसमें काफ़ी सारे सिख हैं, हिंदू हैं, और वहाँ के वसनीक जो है अफगानी भी हैं। तो इसमें दो तरह का मसला है
कि जो आ गए हैं उनका भी हमारे भारत सरकार ने काफ़ी अच्छे से इंतजाम किया है, स्वागत किया है। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उनके रहने का, उनके दिन उनका गुजारा करने के लिए उनका कुछ न कुछ इंतजाम वहाँ पर किया है बहुत अच्छे तरीके से। और कुछ सिख समुदाय के लोग वहाँ पर रुक गए हैं क्योंकि हमारे बहुत ही अहम धार्मिक स्थान है वहाँ पर, उसकी देख रेख करने के लिए। क्योंकि हम लोग किसी भी तशद्दुद के ऊपर में, किसी भी अत्याचार के ऊपर में छोड़ करके अपने गुरुओं के स्थान को नहीं रख सकते हैं। वहाँ से जो हमारी पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जी की ऐतिहासिक जो भीड़ थी, जो हमारा गुरु ग्रंथ साहब था, उनको वहाँ से उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से उनकी मर्यादा का पालन करते हुए यहाँ पर ले आए हैं। और जो रह गए हैं वहाँ पर हमारे धर्म स्थान के जो उनका देख रेख करने वाले, उनको सुचारू ढंग से लंगर का और वहाँ पर धार्मिक मर्यादा का पालन करने के लिए जो रुके हैं वो अभी तक डटे हुए हैं। और ये बिल्कुल स्थापित बात है कि जब महाराजा रणजीत सिंह ने अपना सिख राज कायम किया था तो हमारे इस राज का जो दायरा था वो अफ़गानिस्तान तक था। इस अफ़गानिस्तान को पिछले तकरीबन 20 सालों से जिस पे विजय नहीं प्राप्त कर सका कोई भी देश, उस पर सिखों ने अपना सिख राज कायम करके उन पर विजय प्राप्त की थी। इस तरह की कोई तशद्दुद, कोई इस तरह की कोई जोर जुल्म कोई सोचता होगा कि इसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो सिख समुदाय हमेशा इस तरह की बातों के लिए अग्रणी भूमिका निभाता है। और ये आस करते हैं कि विश्व अपनी किसी भी बनतर के साथ किसी भी तरह अपना सिर जोड़ के इस बड़ी समस्या का जो है समाधान निकालेंगे। और हमारे भारतीय जो वहाँ फंसे हुए हैं उनको सरकार किसी भी तरह की निगोशिएशन, किसी भी तरह का एफर्ट करके उनका सुनिश्चित करे कि वो सेफली हमारे भारत में आ सकें। यही बोलकर आज की इस मामले, आज के जो विषय है इसके बारे में मैं चाहूँगा कि और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है।
एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं PV न्यूज। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। रानीगंज के तारबंगा मोड़ के पास मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फिटनेस एकेडमी के मोहम्मद अमजद और पीस इंडिया जिला ऑर्गेनाइजेशन सचिव शेख जाकिर ने अमर अली, राजा अंसारी, रोज अहमद एवं मोहम्मद साहब आलम को सम्मानित किया। एक मिनट इधर देखो, एक मिनट अमजद भाई। अरे हम लोग को शॉर्ट टाइम में थोड़ा सा मन ये हुआ ना, भैया बोले हम लोग आ जाते हैं जरूर। नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और गर्व का बात है। देखिए इधर चलो को तो मैं इसके जाकिर, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स पीस इंडिया। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि आज रानीगंज और दुर्गापुर पूरे वेस्ट बंगाल में टॉपर हुए हैं। गोल्डन और सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया गोवा में। देखा जाए तो ये बहुत गर्व की बात है। इसलिए आज हम लोगों ने तारबंगला मोड़ पे इन लोगों का स्वागत किया हूँ डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स पीस इंडिया की तरफ से, जिसमें अमजद भाई और भी हमारे बहुत सारे मेंबर मौजूद है। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग NGO की तरफ से इन लोगों को सहयोग किया जाए और हमेशा हम लोगों का सहयोग इन लोगों के साथ रहेगा। आपको तारबंगला में कोई संस्था की तरफ से सम्मानित की जाती है, आगे की आपकी टारगेट क्या रहेगा? अब आगे टारगेट यही है कि नेक्स्ट टाइम ये लोग और बेटर करें किक बॉक्सिंग में, क्योंकि किक बॉक्सिंग ओलंपिक रिकॉग्नाइज्ड गेम हो चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है, साई से रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है। ठीक है, साई जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसमें बच्चों का फ्यूचर है। जो नेशनल लेवल में गोल्ड मेडलिस्ट या सिल्वर ब्रॉन्ज जो रहेंगे, उसका एजुकेशन के हिसाब से गवर्नमेंट उसको स्पोर्ट्स कोटा से जॉब देगी, या और भी बहुत सारा फैसिलिटी। अपकमिंग ओलंपिक 2-4 साल बाद कोई प्लेयर अगर अच्छा खेलते हुए निकल गया, वहाँ भी जा सकता है। देखा जाए कि सिल्वर और गोल्ड जी, कौन हासिल किया? ये गोल्ड दुर्गापुर से 2 बच्चे किए हैं, क्या नाम? उमर अली और राजा अंसारी। ये 2 बच्चे गोल्ड, ये पूरा बंगाल से 2 ही गोल्ड है, उमर अली और राजा अंसारी। और सिल्वर है MD साइम आलम, ये रानीगंज से है, और रोज़ अहमद ये चितरंजन से है। इनके कोच है अमित सर। क्या नाम? मेरा नाम है मंसूर आलम। मिक्स्ड मार्शल आर्ट एंड फिटनेस एकेडमी रानीगंज में हम लोग चलाते हैं। इसमें कराटे और किक बॉक्सिंग हम लोग लेके चलते हैं, और दोनों ही गवर्नमेंट गेम है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। अंडाल ट्रैफिक गार्डों ने मिलकर सेफ ड्राइव कार्यक्रम मनाया एवं कार्यक्रम के दौरान अंडाल
दुबचूड़िया जीटी रोड के पास ट्रैफिक पुलिस ने हर वाहन चलाने वाले लोगों को जागरूक भी किया। আমাদের দুর্ঘটনা মানুষের প্রাণ যাবে। আমাদের রাজ্য সরকারের একটা প্রকল্প যে যারা যেসব গাড়ি চালাচ্ছে তাদেরকে তাদের সুরক্ষার একটা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, যাতে কেউ দুর্ঘটনা না ঘটে। আমরা মানুষকে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করে মানুষকে করবেন না, এই করবেন, এটা করলে আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হবে না, আবার এটা করলে আবার অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বার্তা কি দিলেন? সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ হচ্ছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর একটা স্বপ্নের প্রকল্প। এটাকে আমরা বাস্তবায়িত করার জন্য মানুষকে সচেতন করছি যারা গাড়ি চালাচ্ছে। আমরা প্রত্যেক মানুষকে বলছি যেন হেলমেট পরে গাড়ি চালাক এবং গাড়ি চালাবার সময় যেন ফোন না ব্যবহার করে, মদ্যপ অবস্থায় যেন গাড়ি না চালায় এবং ওভার স্পিড লিমিট যেন ঠিক রাখে। এখন প্রত্যেকটা গাড়িরই খুব স্পিড, যেসব মোটরসাইকেল বেরাচ্ছে সবই সব হাই পিকআপের গাড়ি, সব 150 180 সিসি গাড়ি, এবং সেই সব গাড়ি যেন তারা কন্ট্রোলে চালায়। এবং যখন ওভারটেক করবে প্রত্যেক গাড়ির ড্রাইভাররা সবসময় ডান দিকে থাকে, যখনই মানুষকে সেই গাড়িকে ওভারটেক করে বেরোতে হবে ডান দিক করে যেন বেরায়। এইগুলোই মানুষকে সচেতনার জন্য আমরা সব বলবো। এবং আমরা এই এক সপ্তাহ ধরে এই মন্ডল ট্রাফিকের বিভিন্ন জায়গায় আমরা এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করবো। আমি এএসআই সুকান্ত ব্যানার্জি, মন্ডল ট্রাফিক আজকে আপনাদেরকে নিয়ে একটা বার্তা দিল, সে বার্তাটা কি? বার্তাটা দিল যে যেমন টু হুইলার, যে হাইওয়ে টু হুইলার চলছে বা হাইওয়ে কেন যে লিঙ্ক রাস্তাতেও যদি চলি আমরা, যেমন দুজন গেলে ডবল হেলমেট ইউজ করা বা হেলমেট ইউজ করা, এই কারণে নিজেরই সেফটি ওটা নিজের সেফটি এই কারণে যে আজকে ধরুন কোনোরকম টু হুইলার যান কোনো রকমই স্লিপ করতে পারে, কিছু করতে পারে, একটা হেলমেট থাকলে আমার নিজের জীবন বাঁচবে। এই একটা জিনিস হচ্ছে, আমার পিছনে আরও আছে, আমার ফ্যামিলি আছে, ওয়াইফ আছে, বাচ্চা আছে, তাদেরও একটা ভবিষ্যৎ আছে। আমরা টু হুইলার যান যে চালাই সেই ব্যাপারে আজকে অন্ডাল ট্রাফিক আমাদের যা আলোচনা হলো, যা ওনারা বললেন সেটা খুবই সত্য এবং সবাইকে মেনে চলা উচিত। আমি অন্ডালে থাকি, আমরাও বিভিন্ন সোসাইটির মধ্যে আমরা যখন কোনো মিটিং করি বা কোনো প্রোগ্রাম করি, আমরাও এই সেফ লাইফের জন্য আমরা আপনার পরিচয়? তো আমার পরিচয়, আমি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, জেলা হকার্স যেটা ইউনিয়ন আছে, জেলা জেনারেল সেক্রেটারি আমি, এবং জেটিএফ জনসেবা ট্রাস্ট ফাउंडेशনের আমি জেলার জেনারেল सेक्रेटरी। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।